I'll give you a scenario. I asked this to one of my student today. He's got a call from IIM Ahmedabad. He's a 99.79 percentile and he's a JM category student, by the way. So I asked him this question, and during the PI session, what I got to know about him is that he's slightly down as far as his undergraduation academics are concerned, right? And for the fact now he is facing the panel at IIM Ahmedabad. It's one of the B school, in India at least, which is way rigor as far as the academics are concerned. So basically, जब तुम बात करते हो कि my weak thing is whatever weakness that you talk about, whatever thing that you want to tell them, you can come up with something like, the one regret that I have is that I could not perform very well under my in my graduation, or I could not perform very well in my 10th and 12th standard. So this is where the opportunity comes into picture, जहाँ पे यार तुम उनको एक चीज़ बता सकते हो कि सर ये मेरा रिग्रेट है, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि ठीक है चलो बच्चों को एटलीस्ट पता है कि उसने क्या गलत करा. So I could not perform very well during my undergraduation. I was more into the extracurricular activities. I was more driven by networking and socializing with people. So I think that is a regret that I have. But I really don't want to continue with this regret in my life, and I would love to do very well as far as my MBA is concerned. So I'm trying to be in top 20%, top 30%, when I start with my MBA, and I want to kind of, undo these certain things, which I have not done. And it is always, people say that you really cannot undo your academics, but by performing very well during my first year of MBA, I would love to, get away with this regret. So this is the regret that still haunts me, that still bothers me. This is something you can talk to them directly, and this is where you need to understand कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बात कर सकती हूँ. Now you might wanna say this कि सर मेरा IIT नहीं हुआ, मेरे ये ज़िंदगी में रिग्रेट है, मेरा IIT नहीं हुआ. बट अगर मैं बात करूँ IIT नहीं हुआ इसके बारे में, जैसे माइक ने यहाँ पे कहा कि मेरा रिग्रेट है कि मुझे IIT नहीं मिला. So this is basically giving an importance to an institution in the country, or probably giving an importance to an institution during your lifetime. I would advise not to say that कि मुझे regret है कि मेरा IIT नहीं हुआ, because even though मेरा IIT नहीं हुआ, I'm still alive, I'm still doing good work, and I still have an IIM call right in front of me, right? So you should never say that I could not perform very good in JEE, or I could not perform very well in, let's say, IIT वाला जो भी आपने कहा, ये नहीं कहना चाहिए. यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ ये नहीं कहनी है कि जैसे देयर वाज वन मोर कैंडिडेट टुडे, सो ही सेड दैट कि सर मेरा जो 1 ईयर का गैप था वो मेरा थोड़ा सा रिग्रेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि सर अगर ये मेरा 1 ईयर का गैप नहीं होता, रादर ही सेड दैट कि मेरा रिग्रेट एक ही यही है कि मुझे VRC में अच्छा स्कोर नहीं आया. अगर मुझे VRC में थोड़ा अच्छा स्कोर आ जाता तो शायद से मेरा लास्ट ईयर MBA हो चुका होता. सो दीज आर द रिग्रेट्स आई एम नॉट लुकिंग एट. आई एम लुकिंग एट अ वेरी ब्रॉड लेवल कि आपका लाइफ का रिग्रेट क्या है, विच एंड शुड कम फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट. इट शुड नॉट बी आप अंडरग्रेड का बात कर सकते हो, 10th 12th का बात कर सकते हो, बट ये चीज़ आपका एक्चुअली आना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा इमोशनल टच में दे सकता हूँ. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, इफ योर एंटायर PI इज गेटिंग rigorous and if they are going head to head with you, maybe it can be a CAP interview, it can be SIMBI interview, it can be SIDTM, it can be KJ, it can be IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, it can be anything. So when I ask you about the regret, I'm really keen to kind of have a deep dive into your life. तो ये मत बोलना कि मेरा VRC का स्कोर अगर अच्छा जाता तो मेरा पहले ही MBA हो जाता, बिकॉज again isn't that a regret, sir? It is indeed a regret, but that's a very छोटा सा regret. I mean उसकी वजह से तुम्हारा जिंदगी ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, राइट? एक साल नहीं हुआ ठीक है, यू स्टिल हियर, यू स्टिल गॉट अ कॉल एंड यू स्टिल ऑन द सेम वे. सो जब हम बात करते हैं तुम्हारे रिग्रेट्स के बारे में, तो रिग्रेट्स को आपको ये चीज़ देखना है कि यार मैं कुछ ऐसा रिग्रेट बताऊं जहाँ पे मैं कुछ सब्सटैंशियल चीज़ों के बारे में बात करूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोरोना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को गवाया, किसी ने लव्ड वंस को गवाया. तो मैं कह सकती हूँ कि रिग्रेट मेरा यही है कि आई कुड नॉट सेव देम, राइट? तो इसमें कोई सही और गलत आंसर नहीं है, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम अ इमोशनल स्टिंक्ट ऑफ योर्स, राइट? एंड कोई माइकलाल ये नहीं कर सकता जुर्रत कि आपको पूछे कि यार ये कैसा नहीं. सी व्हेन यू टॉक इमोशनल थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू योर मदर, फादर, योर लव्ड वंस, things kind of starts loosening up during your personal interview. वो थोड़ा आपको उस लेवल पे वहाँ पे लगा ना कि यार हाँ ये मेरा रिग्रेट है that मुझे I could not save them. मेरे बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं एक ही कहता हूँ कि यार I regret not having good mentors in my life, rather having no mentor in my life, right? Something like that. तो आपको उस चीज पे भी थोड़ा सा काम करना है जहां पे आपको लगता है कि यार मेरा वाई MBA मुझे यहाँ पे क्लिक कर सकता है. अब मैंने यहाँ पे बात करी मेंटर के बारे में, राइट? दैट आई वाज नॉट, आई मीन आई कुड नॉट गेट सम गुड मेंटर्स फॉर लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय MBAs and all that stuff. I had to do everything on my own.
यहाँ पे मैं एक बात कर सकता हूँ कि वाई एमबीए में मेंटोरशिप इज समथिंग आई एम लुकिंग एट. आई वुड लव टू गेट मेंटोर्ड बाय द एलिट फैकल्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. तो ये एक चीज मैं वहां पे अटैच कर सकता हूँ. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो रिग्रेट है, एक तो आप इमोशनल लेवल पे बता दो, या फिर आप टेक्निकली साउंड होके ऐसी कुछ चीज बता दो जो आपके वाई एमबीए में आ जाए, या फिर आपको वो क्लिक हो जाए सामने वाले को कि अच्छा ठीक है, तुझे मेंटर्स नहीं मिले, तुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, अच्छा ठीक है, तुझे ये चीजें तूने नहीं कर पाया, राइट. तो ठीक है, ये तुझे एमबीए हेल्प कर सकता है, राइट. I regret not having a great decision making abilities, right? A great decision making abilities. यहाँ पे आप बात कर सकते हो अपनी abilities के बारे में. और जब मैं abilities के बारे में बात करता हूँ, ये decision making वाला जो ability है वो आपके काम आ सकता है. कहाँ पे जब आप बात करोगे उसको बताओगे कि सर maybe I was working under a project and जहाँ पे ये सब चीज़ें, I mean I was not helped by anybody, or I was not guided by anybody, something like that. I could not take this proper decision, right? Something like that. So always make it a point that तुम्हारा जो रिग्रेट है तुम इस तरीके से बता सकते हो. माई रिग्रेट इज दैट आई लॉस्ट 2 years ऑफ माई कॉलेज ड्यू टू कोरोना एंड वुड लाइक टू मेक इट राइट by doing an MBA. You lost 2 years of your ठीक है. I mean again it's not going to be a regret because तुम ऐसा, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को रिग्रेट होगा. तो मेरे ख्याल से रिग्रेट थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी मच यूनिवर्सल. Maybe say regret losing grandfather due to COVID. What can I say in second part of question? Would you have one differently? Okay, this is by the way very good question. Now here, if you talk about who is going to be your idol, who is your role model, this is going to be my next question. Who is going to be a role model? तो अगर आपको role model पूछा गया, अगर आपको ये पूछने के चांसेस, राइट, बिकॉज यहाँ पे आप एक टॉपिक निकाल सकते हो कि माई ग्रैंडफादर के बारे में. सो शी इज सेइंग दैट आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर एंड ही वाज द बेस्ट, आई मीन ही वाज एन इमेंस सोर्स ऑफ motivation for me. Never he was the greatest mentor I ever had in my life. Now losing your mentor is definitely something that you really cannot digest. तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो. अगर आपको चांस मिले तो अपने ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा बात भी कर सकते हो, दैट मे बी ही वाज एन IPS ऑफिसर, और मे बी ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट. This gives you a chance to kind of twist your interview to a different way. तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेस वो लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक चीज बात कर सकते हो. एक मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, what would you love to be known for? Okay, what would you love to be known for, right? Or what would you like to be known for, or known as, right? Whatever you can call it as, right? ये एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है और ये ऑलवेज क्वेश्चन मैं पूछता हूँ PI में. पहले तो मैं आपको एक HR वाला क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई तू बता तेरा रिग्रेट क्या है. पहले मैंने रिग्रेट का क्वेश्चन डाल दिया, मैंने आपकी मेंटालिटी समझ ली कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. For the fact, most of the time we are not ready for this question. It comes directly to us. We फटाफट से we tell them कि what, ये मेरा regret है करके. Then I'll wait for some time. I'll then kind of घुमाओ you in some technical issues, in some political issues, in some GK, some current affairs. उसके बाद मैं तेरे को पूछेगा what would you love to be known for or known as. Now make it a point. This should get connected to your regret. अगर आपका regret technical है तो जैसे आज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जिस बच्चों को मैं इंटरव्यू कर रहा था, CDC का बच्चा है वो, 99.7% आया, IMA कॉल है, IIT दिल्ली का बच्चा है वो. He's a very smart guy. He's a very smart guy. He's got his company and he's got his business and all that. And I asked him like why do you want to do an MBA? तो उसने मुझे कहा कि सर I would love to see myself rather I want to do MBA because I want to expand my business. मुझे कॉन्ग्लोमरेट एक खड़ा करना है और वो कॉन्ग्लोमरेट मुझे खड़ा करना है एंड मुझे उसको लीड करना है. तो ये मेरा ड्रीम है और ये मुझे हासिल करने के लिए, ये अचीव करने के लिए I need an MBA degree because I want to understand all the all the HR and finance and marketing, which is understood, which is acceptable. But जब मैंने उसको ये पूछा that what would you love to be, because उसका regret जो था वो मेरे ख्याल से उसने academics का बताया था. जब मैंने उसको पूछा कि यार तेरा what would you be love to known as or for, तब उसने कुछ अलग आंसर दिया था मेरे ख्याल से. So the advice was कि भाई अगर तेरा आंसर, तेरा regret अगर तेरा ग्रेजुएशन था, मान लिया अगर तेरा अकेडमिक्स था, दैट अकेडमिकली यू वर नेवर दैट ग्रेट परसेंटेज वाइज, राइट. ये मत बोलना कि अकेडमिकली में कभी साउंड नहीं था. दैट डाउट, दे माइट डाउट यू बिकॉज अकेडमिकली साउंड नहीं मतलब क्या है, राइट. तो अगर आप उसको कहते हो कि यार मेरा अकेडमिक इज माई रिग्रेट बिकॉज आई कुड नॉट गेट दोज स्लैब्स दैट अदर्स हैव गॉट, राइट. सो आई वुड लव टू बी नोन फॉर समबडी, और आई वुड लव टू बी नोन एट समबडी डिस्पाइट हैविंग not so great academics went on to build one of the best conglomerates or one of the most profitable conglomerates in the country, right. Not having great academics, went on to do an MBA from IIM Ahmedabad,
and a leader known for building conglomerates. So this is what I would love to be known for. So ये जो एक चीज है ना, वो एक बहुत सही तरीके से फिट हो जाती है आपके आंसर में, एंड देन पता चलता है कि हाँ, बंदा क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके बैठा है, या कुछ भी आंसर नहीं बक रहा है. बिकॉज ये आप जान लो गाइज, आप ए जाओ, बी जाओ, सी जाओ, क्या कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको कुछ टाइम अगर आप इंटरव्यू से बाहर आते हो, ध्यान से अगर आप थोड़ा एनालिसिस करते हो, आपको पता चलता है कि यार ये थोड़ा सा साइकोमेट्रिक टेस्ट खेल गया मेरे लिए. पहले इसने एक पूछा, उसको 5 मिनट के बाद उसने मेरे को उसका कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन पूछा, और दोनों में मैंने अलग अलग आंसर दे दिया. मतलब मेरा कहीं ना कहीं तो थॉट प्रोसेस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. एंड दैट्स हाउ द स्मार्ट पैनलिस्ट will find it out that you are not firm with your goals, or probably you're not firm with what you want to do. So your regrets and who would you love to be known for or as, ये दोनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए.